सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आज का विषय है साधना कंटेम्पलेशन और उसके समरी करेंगे श्रीमयी मुखर्जी। तो सबसे पहले समरी श्रीमयी। Pranam Maharaj ji, Pranam to everyone. So today I'll be doing the summary on the article Fruits of Contemplation. So everyone who is a serious spiritual aspirant and follows a contemplative life at some point wants to know how much he or she has progressed. The main question that this... माइक एडजस्ट करो तो जरा माइक सामने लो। हाँ, am I audible? Now yes, better. Okay. So I'll start again. Everyone who follows a contemplative spiritual life at some point wants to know how far he or she has progressed. Is it clear? Yes. I am able to hear. Others also are able to hear. Okay, Dilip bhai. Okay. So the main question this article addresses is, are there tangible fruits for a contemplative spiritual life? If they are, what are they? Why is this question, first of all, important? It is important so that we remove erroneous or strange ideas about what the fruits of contemplative life are. Some people think that as one progresses in contemplative life, some of the fruits it has are an arousal of Kundalini, or becoming ecstatic, getting psychic powers, emotional exuberance, or physical sensations. While these may be true, these should be considered as hindrances to spiritual life and contemplative life, and they should be shunned for the ultimate goal. So what are the sure signs of spiritual and contemplative life? Most of them are seen in our character. Developing an sthitapragya character, one that is established in wisdom, is far more important than developing psychic powers in contemplative life. The second thing that a contemplative life should bring is that all pairs of opposites, like, dislike, good, bad, these should not matter. So let us first understand what is the contemplative technique according to the Patanjali Yoga Sutras. The contemplative technique is dharana plus dhyana plus samadhi, the last three stages of the Patanjali Ashtanga Yoga. Together, they're called samyama. So now this samyama, or the fruits of this samyama, what are they? According to the Patanjali Yoga Sutras, there are 4 fruits as described in the first chapter. One is development of an introspective mind. Second, mental peace and joy, chitta prasada. Third, capacity to become one with the object of meditation, samapatti. Samapatti. And fourth, gaining special type of knowledge, or knowledge filled with truth, pragya. So each of them I will summarize briefly. First, developing introspective mind. Here, the article differentiates between a common extrovert mind and an introspective mind. For the common extroverted mind, the following characteristics have been given. The senses are always running outward, and this running outward of senses causes the death of the senses.
Further words to describe such a mind are divergent, analytical, centrifugal, not subtle, cannot catch one's own faults easily, and goes from the particular to the general or the one to many, and it is of gross nature. What is an introvert or an introspective mind? It is convergent, centripetal, concentrated, synthetic, goes from the particular to the general, from the many to the one, and is also described by words such as centralization, unification, involution, or vyavasayitmika buddhi. It is subtle and can easily see one's own faults and correct them. One example for the many to one is given by Thakur himself. Thakur Sri Ramakrishna said, Sandhya merges in the Gayatri and the Gayatri in the Om. So, what he meant is, if you search in the Vedas for a central mantra, you can find from the many mantras, you find the Gayatri mantra. And from the Gayatri mantra, as you meditate on it, you find that the essence lies in the word Om. So clearly we have come from the many to the one, and a contemplative mind is able to do so. The second fruit of contemplation is mental peace and joy. A contemplative mind leads to inner peace. How? Because a contemplative mind has increased sattva guna and cultivates the four values of friendship, compassion, elation, and indifference to a pair of opposites. Also, his passions and desires have come down. And these facts increase his inner peace and cheer. And this is supported by slokas in the Bhagavad Gita. This peace, this inner peace that we are talking about, is, one should note, it is different from the ultimate peace of Brahmananda. Yet, this peace is very much worth obtaining. Okay. Now, every fruit from here onwards, the article clearly clarifies what we should not falsely attribute as that fruit. We should be wary of falsely thinking that that is the fruit. What is not this real inner peace? The peace that comes with healthy body, light stomach, pleasant external situation, financial security, or social status. One should not consider these as the actual inner peace. Even in the case of a preacher or a practitioner, it is said that if that person is not really true, he may find that if someone agrees with his views, that person satisfies his ego and he finds mental peace. If someone does not agree with his views, then he is not at peace. This is again not real inner peace. So one should be careful about what one calls peace. The third fruit of contemplation is samapatti. Contemplative life leads to samapatti. But what is samapatti? When a sattvic mind of a yogi becomes one with its object of meditation, this at oneness is called samapatti. Again, a clarification. Several people who are not leading a spiritual contemplative life can get identified with several objects of their love and attraction. This is not the samapatti that we are talking about. The samapatti that we are talking about is of spiritual nature, and the mind of such a person is like a crystal in two aspects. One, it reflects whatever it is kept next to. So if such a man, like a crystal, reflects whatever it is next to, such a person of a mind, the mind of such a person reflects whatever it's kept next to. For example, if it takes in spiritual readings, bhakti, then all good values and virtues, it will reflect exactly that. Secondly, like a crystal is very clear and you can see the smallest speck of dirt in it. Similarly, the man who is established in samapatti, he can catch the subtlest faults in himself. His mind is so clear and he can immediately correct them. The last fruit
that is given in the article of contemplation is the light of intuitive knowledge. We are not referring to just getting knowledge from reading books, media, or just from the reading of scriptures. Why even scriptures? Because we take this knowledge until and unless we contemplate on it and realize them, they remain at the intellectual level. It is only when we use the faculty of prajna, then these spiritual truths are actually directly experienced. And this prajna or intuition leads to the opening up of this truth-filled knowledge. Such a person who has light of intuitive knowledge also is able to discern what are the places, persons, actions, and situations which are conducive to one's spiritual growth and is able to keep there, and what are harmful for one's spiritual growth and keeps away from them. Overall, from this article, what do we understand? There are the fruits of contemplation, such as the introspective mind, mental peace and joy, samapatti, and light of intuitive knowledge, which we should know what they are and keep them in our mind. However, we should not become very attached to them or keep noticing how much I have grown. Rather, our focus should be on following the life itself, following contemplative life itself, and one must not stop till the ultimate goal of life is reached. Thank you. Okay. Thank you, Srimayi. I gave you particularly this topic because you had asked a question, isn't it? Srimayi? Yes, Maharaji. Earlier you had asked a question about this, that how do you know that you are progressing? Yes, Maharaji. So to some extent, this might have given you an answer. But Yes, there are many other levels or many other signs also are there, depending upon the path one is choosing. Okay? Yes, So shall we proceed with the other questions? Yes, Maharaji. Vibha, are you ready? Vibha Chaurasia. प्रणाम स्वामी जी। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन है ना? हाँ। वो क्वेश्चन जो है वो 3 लोगों ने पूछा है, इसलिए मैं उसको सबसे पहले ले रहा हूँ। बोलो। An introspective mind searches for the cause, while the extrovert mind engages in the multiplicity of efforts. The former is synthetic, while the latter is analytical. I want to know about the synthetic and analytical. Yes, synthetic and analytic. This is 3 people have asked this question, analytical and synthetic. Now, analytical यानी क्या है? विश्लेषणात्मक. उदाहरण के लिए देखें, संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनको हम विश्लेषण करते हैं. उसको हम 2 में डिवाइड करें, एक जड़ और चेतन. ओके? जो जड़ है वो जो चेतन है उसमें बहुत सारे प्राणी आ जाते हैं. उन प्राणियों में भी हम डिवाइड करेंगे मानव, पशु, पक्षी, जलचर, इस तरह किया. अब उसके बाद में जब पशु पे आए तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी, घोड़ा, इस प्रकार के और भी एनालिसिस किया और विश्लेषण किया. उसके बाद में कुत्ते पे आए तो कई प्रकार के कुत्ते हो गए. इसको बोलते हैं एनालिसिस, विश्लेषण. अच्छा, आध्यात्मिक जीवन में या धार्मिक जीवन में कैसे होगा ये? तो इसमें ये है कि जैसे श्री राम कृष्ण, श्री राम कृष्ण का कमरा, श्री राम कृष्ण जिस रास्ते से जाते थे वो रास्ता, जयराम, उसके बाद श्री राम कृष्ण वो पंचवटी में बैठते थे, झाऊतला जाते थे, माँ के मंदिर में जाते थे, फिर वे वो विष्णु मंदिर में जाते थे. तो हमने सबको देखा. अब जब विष्णु मंदिर में है तो विष्णु मंदिर की बनावट कैसी है, उसमें मूर्ति कैसी है, इस प्रकार से हमने एनालिसिस किया. ये क्या हुआ? विश्लेषण. ठीक है?
विभा, जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। अच्छा। अब उसको संश्लेषण यानी उसको सिंथेसिस, श्री राम कृष्ण की सारे तीर्थ जहाँ जहाँ श्री राम कृष्ण का जन्म हुआ, श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में आए, फिर काशीपुर गए, हमने सबका दर्शन किया। अब क्या किया, उसके बाद में हमने कहा नहीं, इन सबके अंदर कॉमन चीज क्या है? श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण कॉमन चीज है, तो हम उसको इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। श्री राम कृष्ण अपने कमरे में अपने खटिया पे बैठे हुए हैं, वही पर्याप्त है। इतना ही पर्याप्त नहीं है। श्री राम कृष्ण केवल एक शरीरधारी मानव तो नहीं है, वे कौन है? उन्हें बहुत सारे सद्गुण हैं। उसके पीछे क्या है? वे सच्चिदानंद हैं, वे अवतार हैं, वे परमेश्वर हैं। तो ये क्या हुआ? एनालिसिस नहीं हुआ। हम जो बात कर रहे हैं उसको हम संकोच कर रहे हैं, और संकोच करके हम किस लक्ष्य पर पहुंचे कि श्री राम कृष्ण एक अवतार है, उसके आगे उसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। श्री राम कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप। समझ में आई बात? जी जी स्वामी जी। अच्छी तरह समझ में आ गई? जी जी स्वामी जी। हाँ। अब साधना में हमको सिंथेसिस से चलना पड़ता है, इंट्रोस्पेक्टिव होना पड़ता है। धीरे धीरे हमारा बहिर्मुखी वृत्ति जो है, या दक्षिणेश्वर में जाएंगे, उसके बाद में हमने तो काशीपुर देखा ही नहीं, काशीपुर जाएंगे तो काशीपुर में श्री रामकृष्ण किस खटिया पर ठहरे थे, ये सब वो एक बार कर लिया, उसके बाद में उसमें नहीं जाना है। हमको साधना में इंट्रोस्पेक्टिव मोड में जाना है। और उसके बाद में क्या होता है, एक ने प्रश्न किया है कि इंट्रोस्पेक्टिव मोड के बाद में जब आप एक्सट्रोवर्ट मोड में, तो रिसर्च वगैरह तो एक्सट्रोवर्ट मोड में ही होती है, ठीक है। उसके बाद में किसी ने रिसर्च किया कि श्री राम कृष्ण किस वहाँ काशीपुर बागान में कौन से कमरे में रहते थे, उसमें कितने कमरे हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी रिसर्च होती है। और आजकल आपको कई जो विद्वान हैं वो सब रिसर्च करते रहते हैं, श्री राम कृष्ण ने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी, श्री राम कृष्ण की पुस्तकें क्या क्या थी, इत्यादि किया करते रहते। तो ये रिसर्च हो सकती है बाद में, लेकिन मुख्य रिसर्च होती है श्री राम कृष्ण के स्वरूप का साक्षात्कार करना। ये आध्यात्मिक दृष्टि से इंट्रोस्पेक्टिव मोड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? जी स्वामी जी। अच्छा। अब इसके बाद में एक और प्रश्न, ये सब प्रश्न 3 लोगों ने प्रश्न किया था। सुबीर तुमने भी किया था, श्री मई ने किया था, और उसने भी किया था, और भी किसी ने किया था। तो ये तीनों का एनालिसिस हो गया, तिनको समझ में आ गया? एनी ऑब्जेक्शन? नहीं महाराज जी, समझ में आ गया महाराज। ओके, अच्छा। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि संध्या का लय गायत्री में होता है, गायत्री का लय ओम में होता है। ये भी क्या है? ये भी इंट्रोस्पेक्टिव मोड है, कॉन्ट्रैक्शन। बहुत चौड़ी चीज थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके हमने ओम तक ले आए। इसके आगे भी कह सकते थे, वेदों का लय संध्या में होता है, संध्या का लय गायत्री में होता है। वेद तो कितने विस्तार के, इतने सारे हैं। जब तक हमें बहिर्मुखी वृत्ति है तब तक हम क्रियाकांड करते रहेंगे। और जो संध्या है उसमें क्रिया है, ओम फट स्वाहा करना पड़ेगा। वो उंगलियां जो हैं उसको शुद्ध, नाड़ी शुद्धि, भूत शुद्धि, क्या क्या सब शुद्धि इत्यादि सब करनी पड़ेगी। तो ये किस लिए करनी पड़ेगी? ये है उसमें क्रिया अनुष्ठान। जब तक हमको ये बोध है कि हम बॉडी हैं, हमारी शरीर शुद्ध नहीं है, तो उसके लिए क्रिया किया शुद्ध करने के बाद में, उसके बाद में हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ये गायत्री मंत्र भी जो है वो संध्या का ही एक अंग है, संध्या की जो क्रिया है उसका अंग है। संध्या में क्या है? बाहरी क्रिया भी है, मानसिक क्रियाएं भी हैं, मंत्र भी हैं, ये सब हैं। और उसके बाद में गायत्री। तो जब व्यक्ति चित्त शुद्ध हो जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो फिर संध्या की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ तक कि संध्या भी होती नहीं है, उसको लगता है अरे ये क्या है,
वो जल्दी 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 न ये भूत शुद्धि, नाड़ी शुद्धि, ये अंग करन्यास, अंगन्यास फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करके 5-10 मिनट में निपटा के उसके बाद में गायत्री मंत्र का जप कंटिन्यूसली करते हैं। और गायत्री मंत्र जप करते करते जब मन एकाग्र हो जाता है तब क्या होता है, ओम भूर्भुवः स्वः है ना वहां पे, तो मन जो है वो ओम पे ही रह जाता है। इसको श्री रामकृष्ण ने दूसरे प्रकार से भी समझाया है। क्या कहा है, और निताई अमार माता हती, निताई अमार माता हती, हाथी 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 हा, है ना। जो आदमी निताई मेरा मतवाला हाथी है, वो चैतन्य महाप्रभु का वो मंत्र गाना है, वो गाते गाते जब मन तन्मय हो जाता है तो हा होके रह जाता है। उसी प्रकार से जब गायत्री का जब एकाग्रता से करते हैं तो वो ओम में ही रह जाता है। ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। अगर गायत्री से ही अपना काम चले, अपना मंत्र चले, तो बाकी इतना विस्तार की क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं। तो यह अब व्यक्ति की साधना के स्तर पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे संध्या करनी चाहिए, बिना आपको संतोष नहीं हो तो जरूर कीजिए। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि संध्या की आवश्यकता नहीं है, मंत्र का गायत्री से ही मेरा काम हो जाएगा, और उसके बाद में और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि केवल ओम से ही मेरा काम हो जाता है। हो गया। ये किसका प्रश्न था, सुबीर? हाँ महाराज जी, मेरा था। हो गया, आर यू सेटिस्फाइड विद इट? हाँ महाराज जी, वेरी क्लियर। अच्छा, ओके, नाउ यू फिनिश योर अदर 2 क्वेश्चंस। The other question is how to attain contentment, or the fruit of contentment or santosh. कंटेंटमेंट, फ्रूट ऑफ कंटेम्पलेशन। हाँ महाराज जी, एक मिनट। हमारा सब्जेक्ट जो है आर्टिकल है फ्रूट ऑफ, हाँ, how to attain the fruit of contentment in a contemplative life. ओहो, अरे कंटेम्पलेटिव लाइफ में ही तो फ्रूट ऑफ कंटेंटमेंट मिलता है। एकाग्र मन से अगर आप कंटेम्पलेटिव लाइफ लीड करें, एकाग्रता से ध्यान करें, तो आपके जीवन में जो है क्या होता है, चित्त प्रसाद हुआ, समापत्ति हुई, अंतर्मुखी हुए, तो ये सब तो कंटेंटमेंट के ही तो भाव हैं। कंटेंटमेंट अलग से नहीं कहा पतंजलि ने। पतंजलि ने कंटेंटमेंट या संतोष को अलग से नहीं कहा, लेकिन ये तो अपने आप अपने जीवन में आ जाते हैं अगर कोई ठीक ठीक कंटेम्पलेटिव लाइफ लीड करे। हाँ महाराज, ये चित्त प्रसाद ही कंटेनमेंट का एक बहुत बड़ा अंग है ना महाराज, चित्त प्रसाद। हाँ, वही तो कंटेंट में, चित्त प्रसाद तो कंटेंट में ही नहीं, ये तो है। इसीलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन जो है वो रिडंडेंट है। जी जी जी। और चौथा प्रश्न है हमारे जी, what do you mean by contemplation of God is the real fruit of contemplation? अच्छा, उसमें क्या है कि कंटेम्पलेशन क्या है, धारणा ध्यान समाधि, यानी एक मन चित ध्यान करना, इसी को कंटेम्पलेशन कहते हैं ना जी। तो कंटेम्पलेशन, आप एक मेरे सामने एक पेड़ है, उस पेड़ पर भी मन को एकाग्र करके मैं रिसर्च करके पेड़ के सारी चीजें जान सकता हूँ, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य है भगवान पर ध्यान करना। यही बात है और कुछ नहीं। The best fruit or the best object of meditation is God. That is the idea. Meditation, contemplation यानी meditation जो है वो कहाँ करना है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, अरे भाई ध्यान करो तो भगवान का ध्यान करो, ये सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। इसी संदर्भ में कहा गया। जी महाराज। महाराज एक सवाल और था। हाँ महाराज जी, एक सवाल और था। हाँ, वो ये है कि ठाकुर जी ने एक जगह विद्या नाम के एक लड़के को जो नाटक करता था उसको समझा रहे थे कि सीखने के लिए स्पिरिचुअल लाइफ जैसे एक वैद्य के साथ अगर आप वक्त बिताओगे
साधु संग जैसे होता है, उसी जैसे वक्त बिताओगे तो धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। तो वो क्या प्रज्ञा के समान है महाराज जी? वो जो ठाकुर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या प्रज्ञा है? जैसे कोई वैद्य के साथ रहते रहते सीखता है वो तो धीरे धीरे वो इंट्यूटिवली वो चीजें जान जाता है, उसी प्रकार आपने यहाँ जो पे प्रज्ञा में प्रज्ञा नहीं लाओ, मैंने तो आर्टिकल में लिखा है कि अगर इस दृष्टि से प्रज्ञा जो है वो सभी के पास होती है। एक डॉक्टर जो है वर्षों तक प्रैक्टिस करने से, बड़े सीनियर के साथ करने से, उसके बाद में वो है तो पेशेंट को दूर से देख देख के डायग्नोसिस कर लेता है, कमरे में घुसते ही डायग्नोसिस कर लेता है। तो ये जो है ये प्रज्ञा, आप ये टाइप ऑफ प्रज्ञा या इंट्यूशन है, इसको आप कह सकते हो कि वो डेवलप हो गया है। ठीक है महाराज You can use that word for that. जी। But प्रज्ञा एक्चुअली क्या है कि प्रज्ञा, आई मीन हमने ये जनरल यूज किया उसका है, एक्चुअली प्रज्ञा स्पिरिचुअल सेंस में ही यूज किया जाना चाहिए। जी जी हाँ चलो ठीक है महाराज। अब चंदन, कुंडू तुम्हारा प्रश्न करो। हाँ महाराज। Maharaj, my question is, in this article, mainly 5 fruits have been discussed in detail. Of them, transformation of character is relatively easy to understand as we have some personal experience regarding that. But the other 4 seem very difficult to achieve. One cannot experience them unless completely established in dhyana, dharana and samadhi. One lifetime may not be enough to achieve them, as if these fruits are at the highest branches of the tree. Those of us who started spiritual practices late in life may not attain the one-pointed determination itself due to purva sanskara. Now, what should be the signs and milestones which will signify that we are on the right path? ऐसा है, देखो ये जो आर्टिकल है ये मेरी किताब में, हिंदी किताब और इंग्लिश किताब दोनों में लास्ट आर्टिकल है। और उसके पहले साधना की बहुत सारी आर्टिकल्स हैं। इसके पहले 8 महीना हो गया हम लोगों ने संडे मीट हो रही है, और इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय इत्यादि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। ये सब साधना विषयक डिस्कशंस हैं, याद रखिए। और उसके बाद में आखिरी में मैंने कहा अच्छा देखो तो देखें क्या होता है, और मैंने रियलाइज किया है कि दिस आर्टिकल अपीयर्स टू बी दो वेरी सिंपल साधना की दृष्टि से, और पतंजलि ने जो पहले चैप्टर में कहा है 4 बातें, ये काफी सरल होते हुए भी इसको समझना बहुत कठिन है। दैट इज ट्रू। और अब इसका अगर आप चाहते हो तो चारों को सिंप्लीफाई कर लो ना। पहले क्या कहा है ऋतंबरा, पहला है कहा है कि ततः प्रत्यक्ष चेतना, थोड़ा अंतर्मुखी भाव हमारे जीवन में आएगा, पूरा नहीं आएगा लेकिन अंतर्मुखी भाव आएगा। एकाग्र करके मन को आप रेगुलरली ध्यान जब करोगे, एकाग्र करोगे तो मन तुम्हारा अंतर्मुखी होगा। सेकंड है उसके बाद में मन एकाग्र होगा, समापत्ति होगी, जहां भी लगाएंगे मन लग जाएगा। तीसरा चित्त प्रसाद होएगा, और चौथा इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा। इन चारों को हम सिंपल वे में भी ले सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। और अगर आप चाहते हो उसके आगे, तो मैंने उसके पहले ही बोल दिया है, इस आर्टिकल के सबसे पहले बोल दिया है, ये सारी बातें स्थित प्रज्ञ दर्शन डिस्क्राइब किया हुआ है। स्थित प्रज्ञ है, उसके बाद में श्रेष्ठ भक्त है, उसके बाद त्रिगुणातीत भक्त है। तो गीता में सर्वत्र सब लक्षण बताए गए हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। अगर आप भक्ति करते हो, ठीक हो, श्रेष्ठ हो, तो द्वेष आपके जीवन में कम होगा, मैत्री आएगी, करुणा आएगी, आप स्थिर रह जाओगे। तो ये सारे जितने भी
साइंस ऑफ प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ है, ये सारे शास्त्रों में विद्यमान। यहाँ पर केवल 4 की बात है और इनको आप सिंपल वे में ले लीजिए ना। साधना ध्यान जब अगर आप करेंगे तो चित्त प्रसाद आएगा, मन एकाग्र होगा और अंतर्मुखी होगा और थोड़ा सा इंट्यूशन डेवलप होगा। दैट कैन बी टेकन, नो डिफिकल्टी। क्वेश्चन सॉल्व्ड। इसके मतलब महाराज, हाँ, जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो हम डे टू डे लाइफ या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खुद ही में ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाँ, वही अच्छे मतलब एक तरीके से यार्ड स्टिक्स होंगे टू सी हाउ मच यू आर प्रोग्रेसिंग, यस हाउ यस। मेनी वैल्यूज। क्योंकि ऐसा है ना कि आप अब यहाँ पे जो 16-18 वर्ष की उम्र में अगर स्टार्ट करते तो वो तो अब हो नहीं सकता ना। यस मैम। हाँ, आप रेगुलरली एक डिसिप्लिन लाइफ लीड कीजिए, धीरे धीरे आप खुद जानेंगे कि आप प्रगति कर रहे हैं। यस। कोई बहुत ज्यादा हो नहीं सकता, संस्कार बन जाते हैं, गहरे संस्कार हो जाते हैं। वो कभी कभी तो जब प्रारंभ में होता है तब संस्कार जब उदित होते हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। ये लकीली इस उम्र में ज्यादा नहीं होता। यानी साधना में शुरू में तो गहरे संस्कार जो होते हैं बढ़ते हैं, और हमको मालूम है हम उम्र में 30, 35, 40 वर्ष की उम्र में हमको काफी संघर्ष करना पड़ता था। हमारे संस्कार ध्यान करने में प्रॉब्लम होती थी, हमारे अच्छाएं वासनाएं बढ़ जाती थी। तो ये सब क्यों होते थे? ये संस्कार गहरे पड़े हुए हैं, वो उछलते हैं यानी चर्न अप होते हैं और वो आ जाते थे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एट दिस स्टेज, यू नो। गो अहेड एंड यू विल फाइंड सम साइंस। ठीक है? यस मैम। लता? Yes, Maharaj, in the article, after reading the article, in the conclusion, you have mentioned that the fruits of contemplation should not be given too much importance because they are not the ultimate goals. But after reading it, it came to my mind that if these fruits can be kept set as yardsticks, what he said, or maybe like, certain criteria or short-term goals, is it wrong to do that? Because they seem to be... I'll give you an example. You see, as a student, my short-term goal was to become MD, okay? After becoming MD, my short-term goal was to join the Ramakrishna Mission, okay? After joining the Ramakrishna Mission, my short-term goal was to get sannyas. So when I had sannyas, I felt fulfillment. And how much did it remain? थोड़ी देर के बाद मरे, अब तो मेरा सारा जीवन पड़ा हुआ है, अब क्या लक्ष्य बनाऊं? तब मुझे लगा, अरे ये तो छोटे मोटे लक्ष्य थे, इन छोटे मोटे लक्ष्य तक यहाँ पहुंचा। अरे मुख्य लक्ष्य तो है भगवत साक्षात्कार, समाधि। तो छोटे लक्ष्य कुछ भी बना लो। अब जैसे अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, मैं संसार के समस्त प्राणियों के पड़े मेरा द्वेष नष्ट हो जावे, करुणा आ जावे इत्यादि। शास्त्र में ही लिखा हुआ है। स्वामी ये शंकराचार्य स्वयं कहते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण और श्रेष्ठ भक्त के जो लक्षण दिए गए हैं, ये साधक के साधन हैं। तो आप कुछ भी वैल्यूज अपने जीवन में निश्चित कर लीजिए और उनको कीजिए। ये जो कहे गए हैं, ये जो बातें कही है ना, अभी जो बात हो रही है 4 की, ये तो फ्रूट्स हैं। You cannot make it as goals. वो अपने आप होंगे। अब आप उसमें ये कर सकते हो कि एकाग्रता है तो समापत्ति है, तो वो एकाग्रता सब में एकाग्र मन को करने की कोशिश करो। प्रसन्नता है तो ना, ये चीजें जो है ये अपने आप आएंगी। इसके बदले जो भगवान ने गीता में कहा है श्रेष्ठ भक्त का लक्षण, उनमें जैसे है द्वेष रहित रहना, सबसे मित्रता रहना, करुणा रखना, सबकी सहायता करना,
इस प्रकार के 4-6 खुद सिलेक्ट कर लो और उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न। Yes, ma. दैट इज व्हाट इट इज। हम लोग भी यही करते हैं। पहले मैं तो एक हर महीने या हर 2 महीने में आई यूज्ड टू मेक ए लिस्ट, मैं किन कौन वैल्यूज को अपने जीवन में डालूंगा। पता नहीं आप लोगों को बताया कि नहीं कभी मैंने, तो आई यूज्ड टू डू इस प्रकार से। ठीक है Yes, ma. ईतू? ईतू नहीं है? ईतू घोष? जी प्रणाम महाराज। हाँ बोलो। अच्छा, मेरा प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इज प्रज्ञा द सेम एज गॉड रियलाइजेशन? नो 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 नो, प्रज्ञा इज नॉट गॉड रियलाइजेशन। ओके, Is not absolutely nothing to do with God realization. It is a capacity of understanding higher truths. You develop a higher Ritambara Pragya, यानी you are able to realize spiritual truths easily. लेक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा ही बता दिया कि पता समझ में आ गया। और अभी क्या है, बेचारे ब्रह्मेशानंद जी को इतना लेक्चर देना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब कहीं समझ में, हाँ हाँ महाराज थोड़ा समझ में आया। और बाद में जब प्रज्ञा हो जाएगी तो आपके एक सेंटेंस बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा। That is not pragya. Pragya is not nothing to do with propagation. Second. और सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज इंट्यूशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रज्ञा एंड इंट्यूशन? You see, very difficult to say, you know, intuition also. Intuition जो मैंने कहा है, I have given a lot of examples. एक डॉक्टर डेवलप्स है इंट्यूशन आफ्टर सो मच ऑफ प्रैक्टिस, तो आदमी को दूर से देखते ही बिना एग्जामिन करे डायग्नोसिस कर देगा। और दूसरा आदमी है जो अपने साइंस, अपने मैकेनिक है, तो वो वर्षों तक मैकेनिक होगा, तो वो फटाफट बात को समझ में आ जाएगा। तो ये जो है, ये these are intuitions you develop, or very difficult to say. You know, pragya is a word which is used in the spiritual sense. It is not used in the general sense of intuition. So better keep them separate. Okay? Okay. Acha. Okay. These two are my questions. Acha. Srimayi, you had one more question. Srimayi? हाँ, yes महाराज जी। One more question you had. हाँ. पहला तो वो सिंथेटिक एनालिटिक और रिसर्च माइंड वो हो गया। सेकंड थोड़ा सा अजीब है बट मेरे लिए शायद रिलेवेंट है। क्वेश्चन ये है कि द कॉन्टेम्पलेटिव माइंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड टू बी क्विक इन कैचिंग इवन द सटलेस्ट मिस्टेक्स इन देमसेल्व्स। व्हाइल in general this is a good thing, for some people it may lead to over perfectionism or maladaptive perfectionism and a feeling of guilt and fear before taking every next step. How to combine this fruit of contemplation? I got your question. पूरा पढ़ दो, सबको समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन सबके लिए। हाँ, how to? What to combine this conspicuousness, this catching of every subtle mistake, just how to take only the fruit and not get into the trap of feeling guilty and fearful. You see, ये जो है fruit of contemplation, तो ये तो आया है एक अपने मन की बुराइयां हैं जो पता चल जाए साधक को, और साधक उसको दूर करने का प्रयत्न करेगा। मैटर एंड्स देयर। उसके ऊपर बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा। दिन भर आप ये तो नहीं सोचते रहोगे कि मेरे में ये दोष है, मेरे में ये दोष है। हम मन को भगवान में लगाएंगे। दैट पार्ट हैज टू बी कंटिन्यूड। कंटेम्पलेशन जो है वो कंटिन्यू होगा। ये चीजें बाधा नहीं होंगी। अरे भाई, हमारे मन में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठती हैं, संसार में है, और जब आप ध्यान करने बैठोगे तो क्या सारी बातें आपके दिमाग में आके आपको डिस्टर्ब करेंगी? ऐसे तो काम चलेगा नहीं। सैकड़ों चीजें उठती हैं, तो उसमें एक बार और भी चीज उठने लग गई, आप अपने मन की बात जानने लग गए, आप अपने दोषों को पहचानने लगे, तो उसको इतना इम्पोर्टेंस देने का आवश्यकता नहीं है। इम्पोर्टेंस तो हमारे अपने साधना में ही देना है, ध्यान जप करते रहना है, बस खत्म हुई बात। हाँ,
जिसका बहुत फाइन माइंड मतलब होता है, अगर मिस्टेक बहुत इजीली कर सकता है, वो खुद का भी हमरा नहीं, पेपर आप ही ना देता ले होमवर्क करवा। वो सामने वाला कभी मिस्टेक्स बहुत उसको उसके आंख के सामने उसको दिखता है, तो वो कैसे नेग्लेक्ट करे कि कौन खुद को- नहीं नहीं, ऐसा है कि अपने दोषों की तो बात कर रहे हैं। माँ शारदा बोलती हैं कि दूसरे के दोष मत देखो, दोष देखने हो तो अपने दोष देखो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि दिन रात हम अपने दोष देखते रहेंगे। उसका Yes, मतलब ये है कि आप किसी दूसरे को बुरा मत समझो, तुम खुद की तरफ देखोगे तो सैकड़ों दोष मिल जाएंगे आपको, तो वो अपने को अम्बल बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दिन रात आप अपने दोषों का ही चिंतन करते रहो, yes, Maharaj. उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। एक तो फ्रूट बता दिया है कि जब मन इतना एकाग्र और शांत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका मन जो है वो ऑटोमेटिकली मन में सारी बातें पता चल जाती। अन्यथा जो एवरेज आदमी है वो अपने को जान नहीं पाता है, वो समझता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, बल्कि उससे आदमी विनम्र हो जाएगा और वो नहीं कहेगा, दूसरे की दोष नहीं देखेगा, विनम्र होगा। अपने दोष, किसी ने दोष दिखाया तो कहेगा बाबा मेरे में और भी ज्यादा दोष। Yes, Maharaj. सो उसका वो प्रैक्टिकली जो है ये बात, वो कभी साधना में बाधा नहीं बनता। मन तो हमारे भगवान में लगाना है एज ए सेकेंडरी रिजल्ट, और ये सब्सिडरी इफेक्ट हो गया, हमको अपने दोष मालूम पड़ गए। Yes, Maharaj. ठीक है, Yes, Maharaj. अच्छा दिलीप भाई। दिलीप भाई अनम्यूट कर ले, उनका माइक्रोफोन म्यूट है। आपका वो ग्रैंडसन को बुलाना पड़ेगा एक बार अनम्यूट करने के लिए। महाराज, इसके ऊपर मेरा एक प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ क्या? अभी जब वो दिलीप भाई नहीं आ पा रहे हैं, पूछ लो। नहीं, इसी के ऊपर श्रीमयी ने जो प्रश्न किया है। श्री मई ने किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है उसने किया है। मेरा प्रश्न है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, दूसरों के दोष से सीखने लगते हैं, तो वो दूसरों का दोष को आलोचना करना ठीक है कि नहीं? ये मैं हे भगवान, ये भी कोई प्रश्न है? माँ मतलब शारदा ने 10 बार कहा, कितनी बार कहा किसी के दोष मत देखो, और अपने दोष से ज्यादा तो दूसरों को, दूसरे के दोष। अरे बाबा ये तो सब सब जानते हैं इस चीज को, ये कोई प्रश्न है? नहीं, इसके ऊपर हम अपने को सुधार सकते हैं कि नहीं? अरे सुधारना नहीं है तो दूसरे के दोष मत देखो, ये माँ शारदा ने लिखा, बोला है, उसको बड़े बड़े शब्दों में लिखो ना अपने कमरे में। हाँ, नहीं, मेरा ये क्या प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है? तो माँ शारदा का किसी का एक देखकर मैंने आपको प्रश्न किया। किसने का टीचिंग है ये? माँ शारदा का तो पक्का टीचिंग है। हाँ दिलीप भाई, आवाज तो आ रहा है, बोलिए जी। हाँ, are there any other path than scriptures or path than Patanjali Yoga Sutra for getting fruits of contemplation in life? अरे ऐसा है कि कंटेम्पलेशन का अर्थ होता है धारणा, ध्यान, समाधि। यानी वो जिसको पातंजल योग सूत्र का विषय लिया है इसलिए कहा गया। सैकड़ों पाठ हैं, जो तो मत तो पथ। आपका वैष्णव पाठ भी है, उसके अंदर भी ध्यान होता है, विष्णु का ध्यान होता है, श्री कृष्ण का ध्यान होता है, लीला चिंतन होता है, भक्ति का मार्ग भी है, ज्ञान के मार्ग में भी ध्यान होता है, श्रवण मनन निधिध्यासन होता है। अरे बहुत सारे पाठ हैं, जितने पाप बोलोगे प्रत्येक व्यक्ति का एक एक मार्ग है, केवल पातंजल योग सूत्र नहीं, बहुत सारे मार्ग। जी महाराज। My second question, in your article you made things very clear. In one of the paragraphs you said a spiritual aspirant to begin with delights in listening to and meditating upon the Leela of the Lord, his divine sports. He visits the places of pilgrimage associated with his chosen deity and celebrates the days and dates
associated with them. If I have reached to this stage, then ultimately I can reach to the correct goal of introspection. तो क्या, हाँ चलिए ठीक है, आप जहाँ पे हो उस स्थान से चलिए, धीरे धीरे आप बढ़ेंगे आगे। जैसे अब कहा ना, पहले संध्या, संध्या के बाद गायत्री, गायत्री के बाद ओम, और मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। संध्या में बहुत सारी चीजें होती हैं। उसी प्रकार आप पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ये सब शुरू में हो रहा है। लेकिन आप अगर ठीक ठीक करेंगे तो धीरे धीरे आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये प्रारंभ है, ये याद रखिए, वहीं पे अटकना नहीं है, संध्या पे रुकना नहीं है, उसके बाद गायत्री पे जाना है और गायत्री के बाद ओम पे जाना। चलिए। Now my next question, is it necessary for becoming introvert one has to go through the path of extrovert? नहीं तो उससे क्या लेना देना, दोनों अलग हैं। तो without extrovert आदमी जो है वो एक्सट्रोवर्ट या जो व्यक्ति आदमी है उसको कभी न कभी तो इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्टिव होना पड़ेगा। उसको धीरे धीरे नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप करने से, ये जो बताया ना, ध्यान से नाम जप करने से अंतर्मुखी व्यक्ति होएगा, तो वो उसको खुद ही करना पड़ेगा। उसी से उसके शुरू करना पड़ेगा हमें। उससे लेना, अलग से लेना करना पड़ेगा आपको। जी। Now my next question is, what is the highest attainment of Brahmanand? ब्रह्मानंद, देखो तीन बात करी ना, पहला है विषयानंद, दूसरा भजनानंद और तीसरा ब्रह्मानंद। यही तो है ना तीन, इसी से आपका प्रश्न उठा है ना। जी जी महाराज। तो आप विषयानंद तो हम जानते हैं, सब समझते हैं। भजनानंद भी जानते हैं, ये क्लास होती है आपको अच्छी लगती है, भजन होते हैं अच्छे लगते हैं। ब्रह्मानंद जो है उच्चतम स्थिति है। याद रखिए, एक अच्छी तरह समझ लीजिए इस चीज को, कि ये जितने आनंद मिलते हैं ये सब हमारी आत्मा के आनंद हैं। याद रखिए, लगता है कि विषय हमने खाया है, बढ़िया लड्डू खाया है, बढ़िया लड्डू में बहुत आनंद आया, लेकिन अगर घर में कुछ बड़ी दुर्घटना हो गई, उस दिन 100 लड्डू भी आ जाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मजा नहीं मिलेगा। मतलब ये क्या है कि मन में है ध्यान, तो आनंद जो है। और हमारे वेदांत कहता है कि हमारे आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप है, उसी का आनंद विषयानंद के रूप में, भजनानंद के रूप में प्रकट हो रहा है। और जब चित्त शुद्धि हो जाती है तब हमारा जो मन है वो उसके अंदर अपने आप आनंद प्राप्त होता है, बिना किसी विषय के। न तो भजन की आवश्यकता होती है और न ही विषय की आवश्यकता है। थोड़ा मन शांत रहेगा तभी आपको आनंद आने लग जाता है ना। तो ये आनंद क्या है? ये आत्मा का आनंद है, और इसका चरम उच्चतम आनंद होता है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मानंद। तब आप ब्रह्म के साथ में जो सर्वव्यापी परमात्मा है उसके साथ एक हो जाते हैं, या यूं कहिए कि आपका जो आत्मा का पूर्ण प्रकाश होता है, और तब आपको उच्चतम आनंद मिलता है, वो हुआ ब्रह्म। ठीक है जी महाराज। अच्छा, नेक्स्ट, a sadhak thinks that he is leading a contemplative life by 7 false peaceful states of mind as given by Saint Teresa of Avila, and gets confused. How to remain aloof and not come into the clutches of the so-called contemplative life? अरे थोड़ा कंटेम्परेरी करो तो, बिना करे आपको तो ये उसके वो भी नहीं मिलेंगे। ये तो सावधानियां साधक के जीवन में प्रत्येक स्तर में होती है। आप अगर भक्ति में भी करोगे, भक्ति का मार्ग भी है तो उसमें भी बहुत सारी बाधाएं हैं, ज्ञान का मार्ग है उसमें भी बहुत सारी बाधाएं हैं। तो ये एक प्रकार की बाधाएं हैं, हमको छल हो जाता है, पता नहीं चलता है कि हमको जो भजन में आनंद हो रहा है ये सच्चा आनंद है या नहीं है। उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि आनंद मिले तो भी भगवत चिंतन या धारणा, ध्यान, समाधि, कंटेम्पलेशन करते रहना चाहिए। तो अभी आनंद बढ़िया मिल रहा है और छोड़ दिया तो फंस गए। फंसना तभी होता है जब इस प्रकार की हो जाती है। अरे वो कहती है अपने तेरेसा कि अगर मौसम बड़ा साफ होवे, सुंदर होवे, प्रकृति बड़ी सुंदर होवे,
और आपने हल्का खाना खाया है, मन प्रशांत है, आहा कितना अच्छा लग रहा है, ये एक प्रकार। तो ये तो रोज होता है हमको तो बैठते हैं, बैठे ही तो मन शांत रहता है। तो ये जो शांति है, ये क्या भगवत दर्शन की शांति तो नहीं है। ये तो ठीक है, हमारा शरीर अच्छा है, मन शांत है, मन में कोई वासना नहीं उठी है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। अच्छा, अब बच्चा बीमार था, बड़े कष्ट पा रहे थे, अब ट्रीटमेंट किया, बच्चा पास हो गया, बच्चा अच्छा हो गया, बच्चा पास हो गया, उसको अच्छे मार्क मिले, तो क्या आनंद हुआ। और इसको अब अगर कोई व्यक्ति भजनानंद समझ ले या भगवान का आनंद समझ ले, तो दोष किसका? तो एक तो ये है कि इसको जान लेना चाहिए, और दूसरा ये है कि चाहे कैसा भी आनंद होवे, साधना नहीं छोड़नी चाहिए, साधना करते रहना चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि इसके ऊपर भी कुछ है। जब ब्रह्मानंद होगा तब आपको सचमुच लगेगा कि नहीं, ये अल्टीमेट है, इसके ऊपर और कुछ नहीं। तो जो भी इतने ये डेंजर्स जो हैं, उसको एक बार जान लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि चाहे कैसी भी आनंद की स्थिति होवे, साधना को कम नहीं करना चाहिए। तो ये सातों चीजें बड़ी छलावा है जीवन में, हैं? This is very deceptive in life. These all 7 things. अरे भाई, ये संसार में बहुत सारे डिसेप्शन हैं, इसीलिए कहा है साधना करते रहिए। और ये जो डिसेप्शंस हैं वो 5 मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं वहां पे। हाँ, करे हुए हैं जी महाराज। हाँ, शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, विस्तार में जाओगे तो कहाँ घुसोगे। नहीं जी महाराज। Now my next question. Some practitioners are satisfied with बहुत दिन बाद आई। name. बोलो नेक्स्ट। Yes. Some practitioners are satisfied with name, fame, and recognitions. They are happy if they are recognized as a saint. ये अच्छा। आपके आर्टिकल में लिखा हुआ है। This is not a true spiritual peace. This is not a true spiritual peace. ठीक है, ठीक है। हाँ, अब महाराज मेरा इसमें एक सवाल ये है कि I know 2 persons who are reached to the highest stage of saint without recognizing this. महाराज दो मैं संतों को जानता हूँ कि जिनको ये जो मिला है छोटा प्लेजर पेन, उससे वो बहुत बड़े महात्मा बन गए। तो दिस इज नॉट अ ट्रू स्पिरिचुअल पीस। अब वो बाबा, वो मेरे को क्या बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा उसको। तो अरे रामकृष्ण मिशन के श्री रामकृष्ण के जो शिष्य लोग थे, वो तो बहुत उच्च कोटि के शिष्य थे, बहुत उच्च कोटि के आध्यात्मिक लेवल पे थे। उनको कौन जानता था? कितने लोग जानते हैं? लाटू महाराज को कितने लोगों ने जाना? तुरानंद जी को कितने लोगों ने जाना? वो तो एकांत में रहते थे। तो ये दूसरे लोगों के, संसार के लोगों के द्वारा के द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करना को कोई सहन नहीं किया जा सकता। इससे ये अपने को क्या लेना देना उससे? नहीं, ये प्रश्न जो है वो रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए जी। हाँ, जो भी हो, वो लोग साधु नहीं हो, पूरे नहीं हो, आध्यात्मिक नहीं हो, वो कह रहे हैं कि मुझे समाधि हुई है, तो अब समाधि हुई है, होगी, हम क्या जानते हैं। और दूसरे लोग उनको मानते हैं, तो मानने दो, उसको आपको क्या करना देना उससे। हाँ, ये रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। सॉरी महाराज। सेल्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटेलेक्ट एंड बॉडी, हाउ इट कैन बी? आत्मा जो है, माइंड क्या? हाँ, यहाँ लिखा है सेल्फ इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेलेक्ट एंड बॉडी। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारी बॉडी किसकी है? तुम्हारी है ना? देह तुम्हारी देह है ना? हाँ, वो जो कपड़ा तुम्हारा है, तुमने पहना है, वो कपड़ा भी तुम्हारा है जी। अच्छा, देह भी तुम्हारी है जी। तो जो चीज तुम्हारी है वो तुमसे अलग है कि नहीं होती क्या? मन तुम्हारा है, तुम मन को देख सकते हो, तो जिस वस्तु को तुम देख सकते हो वो तुमसे भिन्न है कि नहीं? जी, भिन्न है। सीधी बात है ये तो, इतने बिल्कुल सरल बात है। जो देह है, देह है,
वो आप नहीं हो, आपकी देह है, आपकी देह है, और मन भी आपका मन है, आप उसको देख सकते हो, तो आप जो हो वो मन से भिन्न हो, ये तो जी सीधी बात। जी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in sadhana one gets intuition that he is going on a right path. How do we get that intuition or knowledge? क्या क्या समझा नहीं है? जी, in sadhana one gets intuition that he is Intuition. going on a right intuition. हाँ On a right path. He is going on a right path. He gets हाँ that intuition. हाँ। How he gets that intuition? नहीं तो वो तो मैंने डिस्कस कर लिया है। साधना से चित्त शुद्धि होने के कारण आपको लगता है, पता चल जाता है, चित्त शुद्धि होती है। जी महाराज, right. हाँ। At times it is seen that in getting contemplative life, a onlooker thinks that the sadhak has lost the balance of mind, while the sadhak feels that he has attained the highest goal of spirituality and the realization of God. In such cases, what the sadhak should do? वो उसको ऐसा है कि एक उच्च कोटि के संत या गुरु के पास जाना चाहिए। हाँ। और उसका मार्गदर्शन हमेशा लेना चाहिए। ये समस्याएं कई बार होती है, हम अपनी स्थिति को समझ नहीं पाते हैं, हम समझते हैं कि हम बहुत उच्च कोटि के हो गए हैं, जबकि कुछ नहीं होता। तो ये गुरु के पास गुरु होना बहुत आवश्यक है साधना के लिए। और गुरु के पास जाओ तो वो डांटते हैं, कहते हैं लगे रहो लगे रहो। तो वो लोग क्या समझे नहीं समझे, और खुद का भी थोड़ा बड़े सावधानी से चलना पड़ता है इन चीजों। तो अगर कोई गुरु दी मिल जाए तो बहुत अच्छा। जी महाराज, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि यूपी में एक IAS ऑफिसर थे, वो कृष्ण भक्त इतने थे कि जब वो ऑफिस भी जाते थे लेटर पीरियड ऑफ हिज लाइफ, तो वो कुछ भी कपड़े पहन लेते थे, राजा के कपड़े पहन लेते थे और वहां पे जाके डांस करते थे और ये करते थे, और वो अपने आप को उच्च भाव में बताते थे। अल्टीमेटली ये रिजाइन और वो चले गए। तो क्या ये वास्तव में भाव था? अब ये देखो, सुनो सुनो, ये जो प्रश्न तुम्हारा है ना, हाँ, ये तुम्हारे जब जीवन में अगर होवे तो प्रश्न कई किया करो। बाहर के तुमने 2-3 प्रश्न किए हैं जो दूसरे लोगों के बारे में किए हैं, ये रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं संसार में, उनके बारे में प्रश्न मत करो। When we do good work, we do some meditation, jap, etc. We feel we are proceeded, but it is only 0.0001 or even less on the path of liberation or realization. We feel happy. This happiness is pride or ahankar. क्या ये and whether the ahankar can be good and bad? तुम खुद ही तो बोल रहे हो। अच्छा, अहंकार की बात कर रहे हो, गुड और बैड अहंकार। तो मैंने वो उसको अपने जो बात किया था मोबाइल फोन पे, मैंने कहा था कि हमने अच्छा काम किया है तो जो अहंकार है वो अच्छा अहंकार। मैंने बुरा काम किया, झूठ काम किया, अरे मैंने बुरा काम किया तो ये बुरा अहंकार है। ऐसा नहीं होता। ये अहंकार को तो अहंकार ही होता है। अच्छा हो और बुरा हो इसका कोई कारण वो नहीं होता, अहंकार तो अहंकार ही होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कच्चा अहंकार और पक्का अहंकार। जब व्यक्ति ये समझे कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान करा रहे हैं, मैं उनका यंत्र हूँ, तब वो हुआ पक्का अहंकार, और नहीं तो बाकी सब जो है वो कच्चा अहंकार। तो ये अहंकार को अच्छा बुरा के साथ में जोड़ना नहीं है, सभी अहंकार हैं, साधना करते जाइए। अहंकार के साथ द्वारा ही साधना होती है। मैं साधक हूँ ये भाव होके दया करना है, या फिर ये सोचिए कि मैं भगवान का भक्त हूँ और साधना कर रहा हूँ। ठीक है? राइट महाराज जी महाराज। हो गया? हाँ महाराज जी, हो गया, प्रणाम। अच्छा, और किसी का प्रश्न है? और किसी का प्रश्न? हाँ, एक लास्ट सवाल था। तो आपने दिलीप अंकल को बताया वो ब्रह्मानंद के बारे में, और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट महाराज जी रामकृष्ण मिशन के ऑर्डर के स्वामी ब्रह्मानंद जी थे, और आप ब्रह्मेशानंद जी हैं।
तो ये ब्रह्मानंद और ब्रह्मेशानंद में क्या फर्क है? उससे कोई संबंध नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं। अच्छा, ब्रह्मेशानंद का मतलब क्या है? नहीं, ब्रह्मानंद जिसको ब्रह्मा का आनंद मिलता है, ब्रह्म का आनंद है, हाँ, ब्रह्म में डूबा हुआ है। और हमारा है होगा ब्रह्म और ईश और आनंद, तीन जुड़ गया। तो ओके। ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मानंद जी के आज ज्यादा हमारा अर्थ हो गया है। अरे ये शब्दों का अर्थ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ नाम दिए हैं। जैसे तुम्हारा नाम श्रीमयी है और दूसरी तुम्हारी सिस्टर का नाम होगा कमला होगा, तो उससे कुछ इम्पोर्टेंस थोड़ी है, नाम से थोड़ी कुछ लेना देना। नहीं, ब्रह्मेशानंद का मतलब क्या है उतना ही जानना था। नहीं, ब्रह्म ईश आनंद, ये तीन शब्द जोड़ दिए हैं और कुछ नहीं। हाँ, समझ में हो गया जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम देवाशीष साहब, मैं पहला क्लास अटेंड कर रहा हूँ न्यू दिल्ली। आपका लेक्चर कई बार मैं सुना है, बहुत बार सुना है आपको, चंडीगढ़ में जब थे आप आते थे दिल्ली में भक्त सम्मेलन में। अच्छा जी, मैं एक छोटा सा चलना चाहता हूँ। मैं कंटेम्पलेटिव लाइफ आपने जो आर्टिकल दिया था मैंने पढ़ा है। नाउ what should we contemplate? What should we contemplate? Should we contemplate that I am the Atman? Everything, whatever is coming in front of me is only the appearance. I start negating everything and removing everything. Or should I contemplate that is the same God, same everything? So how do I? I mean, first thing I understand that when the I am चित्त शुद्धि होता है तभी जाके ये सब चीज होता है। Am I right? Should be contemplate which when what all the virtues what you have said in the contemplative life, how do I acquire these virtues when I contemplate that this world is appearance? I am the Atman, I am the Atman, I am the Atman. Is that correct contemplation? नहीं, सुनो, देयर आर कंटेम्पलेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये तुमने जो बताई है अपने विचारों को जो भी उठते जाते हैं उसको देखना, ये एक टेक्निक है। दूसरी टेक्निक है किसी श्री राम के या कृष्ण के रूप के ऊपर मन को एकाग्र करना। तीसरी टेक्निक है नाम के ऊपर एकाग्र करना, किसी के एक स्पिरिचुअल प्रिसेप्ट के ऊपर, ऑल इज ब्रह्म या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो कंसेप्ट्स हैं उसके ऊपर एकाग्र करना। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। तो जो तुमको टेक्निक है, किसी से सच पूछा जाए जो आप जो कर रहे हो, अगर आपने किसी किताब में पढ़ा है या किसी ने आपको बताया है तो उसके अनुसार आप करते चले जाइए, बट होल्ड ऑन टू इट। बिकॉज क्या है, तुम 6 महीने करोगे और उसके बाद उसको छोड़ दो, ये नहीं होना चाहिए। ने जो बताई है ये है कि तुम जो भी मन में विचार उठ रहे हैं उनको देख रहे हो, isn't it? यही है ना? Yes, just go on. It's not so easy, but go on, but don't change it. Okay? This was the question. Any other question you are? Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj ji. Okay. Any other question? और किसी की क्वेश्चन है क्या? बंद करें? अच्छा, अब मैं एक बात कहना चाहता था, ये है कि मुझे 2 पार्टिसिपेंट्स ने ये कहा कि स्वामी जी, एक पार्टिसिपेंट ने ये कहा कि स्वामी जी ये टॉक के बाद में आप जो हमारा जो वो है मीडिया है उसको आप इमीडिएटली बंद मत कर दीजिए, क्योंकि हम उसके माध्यम से 5 मिनट सब लोगों से मिल सकते हैं। मैंने डांट के उसको बंद कर दिया। जो स्पिरिचुअल गेन आप किया है उसको आप 5 मिनट के सोशल कांटेक्ट में नष्ट कर दोगे। एक दूसरे डिवोटी ने भी यही कहा कि स्वामी जी आप दूसरे से बिल्कुल उन लोगों से जितने डिवोटीज हैं उनसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, ये कीजिए। मैंने डांट दिया। पर्पस, ये जो जूम मीट हो रही है इनका पर्पस केवल स्पिरिचुअल है, ये याद रखिए, ये सोशल पर्पस नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि हमारा सारा स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो सोशलाइज हो जाता है। अरे भाई, अंतर्मुखी होना है, अंदर जाना है, स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना है। ऑलरेडी आप लोग संसार में गहरे पड़े हुए हो, पर फैमिली में आपके कमिटमेंट्स हैं, उसके बाद में सोशल कमिटमेंट्स हैं,
बुरी तरह फंसे हुए हो। इसलिए सच पूछा जाए तो बीच बीच में एकांत में जाना चाहिए। आप लोगों को मालूम है सेवा रूरल एक इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों ने एक नर्मदा के किनारे एक कुटिया बनाई जिसमें वे जाके और बीच बीच में एकांत में जाके रह सकें। अब क्या सिचुएशन है मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पे सारी व्यवस्था है, एकांत है बिल्कुल। आप 4 दिन 7 दिन 5 दिन जाके वहाँ पे रह सकते हो। ऐसे सब प्रोग्राम प्लान वगैरह सब है। तो जो हो, या मैं जो बताना चाहता था वो ये है कि जो भी प्रोग्राम है, इट इज ए स्पिरिचुअल प्रोग्राम, इट इज नॉट ए सोशल मीट, इट इज नॉट ए सोशल गेट टुगेदर। ये अच्छी तरह याद रखें, ठीक है? ओके महाराज, ठीक है महाराज। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रणाम कर दो। प्रणाम महाराज, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज।